Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm in a place called Kondwa, about 8 to 10 kilometers near Pune. And this people here, Maulana Rais Sahab, as you can see him in here, Maulana Rais Sahab, he gathered all blind people so they can read Quran and learn Hindi, Marathi and other subject. I have seen some of the work and I'm very happy with it. So soon inshallah they want to buy this land, which is start from here. As you can see the columns, and it goes from here to there. Mufti Sahib is pointing. If you can see the columns, there it is, and it comes around here 100 square feet, and actual price is 10 million rupees, but we can get it for 50 lakhs. Mufti Sahib is here, who is the Bani of this blind people madrasa, and that's his brother. Ana Naeem Sahib, Mufti Sahib here, and this is the boundary, and this is Mufti Maulana Naeem Sahib. Alhamdulillah, he is here for help as well. So soon they have to pay the deposit for this land, otherwise they're going to lose this land. This is Maulana Masood Sahib from Jalgaon. So I am requesting all the Muslims all over the world to help us much as you can, so we can buy this land. Otherwise we're going to lose this land. And blind people, we're going to make a main foundation of blind people learning Quran, become Hifz, and teach them the school so they can get dependent on themselves. This is the Mufti Sahib, Mufti Rais Ahmed Khan. This person is the founder of blind people Hafiz Madrasa and school. He went to Mumbai Fine Touch and he learned the Braille Quran, and then he worked very hard on South African people to send them Quran in Braille. This Maulana Naeem Sahib is trustee of this foundation. उर्दू में बोलिए फिर आप। एक मिनट। अच्छा तो सुनिए ज़रा, मुझे आधे घंटे से कॉल कीजिए, ज़रा मीटिंग। हाँ, आप शुरू कीजिए ताकि पता तो चले मैं कहाँ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह हाजी सामान साहब, मुफ्ती रईस साहब जो इसके बानी हैं, और मौलाना नईम साहब ये हमारे सोसाइटी में हैं, हमारे ट्रस्ट में हैं। और ये जो जगह हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहली जगह नाबीना मदरसे के लिए बनाई जा रही हैं। इस मदरसे के अंदर सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं है, असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हम बच्चों को देते हैं जो ब्लाइंड के अंदर होती है। ब्रेल लिपि के अंदर हम उनको जी हाँ, ब्रेल लिपि के अंदर हम इनको बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं और बच्चे हाफिज़ भी बनते हैं। इंशाअल्लाह आलिम भी हम इनको बनाएंगे ब्रेल लिपि के ज़रिए। हमारे अज़ाइम हैं और आपके सामने ये जगह जो मदरसे की हाजी साहब ने इसका पूरा रिकॉर्ड किया है। इसका पूरा मुकम्मल तखमीना तकरीबन 1 करोड़ रुपए है, मगर जो हज़रात इसको दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, वो 50 लाख रुपए में सिर्फ मदरसे के लिए इन्होंने एक रियायत के साथ दे रहे हैं। और अपनी वालिदा के सलाह के लिए भी आप हज़रात से दरख्वास्त है कि आप हज़रात भी इस 50 लाख के अंदर हमारा ताउन फरमाएँ, इसलिए कि हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है और ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला इसको दारैन के अंदर अजर अज़ीम का ज़रिया बनाए, हमारी हिदायत का ज़रिया बनाए, हमारी निजात का ज़रिया बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। क्यों तो खान कर रहा है बेटा? पीछे से जाओ थोड़ा, इधर से आओ।
इधर बेटे आप ऐसे आओ। समीर सर की क्लास में ऐसे बैठो। This guy who is guiding others is partially blinded, and he is one of the khadim in this blind organization. आपका नाम क्या है? पूछो तब बताइएगा। आपका नाम क्या है? Abdul Rahim. Mufti Sahib is bringing most of the children to the prayer rooms. This is the class of blind students. In this, only 2 are partially blinded. Maulana Rais Ahmad Sahab started this work. He been to Fine Touch in Mumbai, where he learned the Braille Quran, and then he got this to ब्रेल में कुरान पढ़ना जानते हैं। अच्छा माशाल्लाह साहब के पास ही पढ़े असल में। अच्छा the Mufti Sahib have teach these 2 people to write it, how to read Quran in Braille. Alhamdulillah, I have talked to these 2 people and I found them very dedicated to their work, and Alhamdulillah, they asked me few questions and do research in UK in a blind institute. So inshallah I will go to the blind institute and learn something which will be useful for this organization. This institute is the first institute in Maharashtra, in Pune, and inshallah we are thinking to involve whole India, or inshallah ta'ala, because we need this Muslim education organization for the blind people, because they haven't got any other way to learn either Quran or any other language. They learn, mashallah. I have seen Sir teaching Ayaz. Mr. Ayaz. Ji, when he was teaching history, I went to his class, and Alhamdulillah, he was teaching history in Marathi language. So inshallah, these people will know what is the world is like. They can't see it, but they can understand it, and in the future they will be able to look after themselves. So I'm humbly requesting all the Muslims all over the world to donate generously, so we can progress more and more in this line of education. So I'm hoping very deeply that you will help us, so we can help these people. Jazakallah khair. शक्ल ने बेटा, हाँ अपने चेहरे ऊपर करो बेटा। हाँ, बस बैठो सर, ज्यादा ऊपर में आओ सर। ये कौन है यहाँ पे? ये अब बात थोड़ी गर्दन ऊपर करो। हाँ, बस। अभी अब्दुल्ला तो फिर क्या पूछूं मैं आपसे? कितने साल पहली जिंदगी क्या थी इनकी? हाँ, ये बात सही है। ये मदरसे में आने का क्या फ़ायदा हुआ और इससे पहले ज़िंदगी क्या? हाँ जी, ये बात सही है। अच्छा, अंग्रेज़ी में पूछता हूँ ताकि इसको मैं YouTube में चढ़ाऊँगा। तो हाउ वॉज योर लाइफ व्हेन यू वॉज लिविंग विद योर फैमिलीज? किसको समझ में आया? नो आंसर? रोज समझ में आया क्या? बोलो खड़ा हो गए। क्या बोले सर? गलत तो गलत बोल चल। चलो बोले कि आप पहले कैसा रहते थे आपकी फैमिली के साथ में? जी हाँ। अपने तासुरात तो बयान करो। अब आपके तासुरात बयान करो अंग्रेजी में। अंग्रेजी में चलिए हिंदी में ही सही चलिए बताइए जोर से। पहले अपना नाम बताओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद फेरोज़ है। मैं जो है तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, घाटनादरा से, मुकाम पोस्ट घाटनादरा, टेल सिल्लोड एंड डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, जहाँ से मैं आया हूँ।
और जो है तो मैं पहले नाबीना नहीं था, बाद में स्कूल में उर्दू प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था, तभी तीसरी में तभी मैं था, तो उस वक्त मेरे आँखी को मार लगने की वजह से मैं ब्लैंड हो गया। उसके बाद में जब मुझे इलाज किया गया, इलाज करने के बाद में कोई फ़र्क ना हुआ, तो उसके बाद में तकरीबन 3-4 साल के बाद में मुझे मालूम पड़ा कि औरंगाबाद के अंदर भी ब्लाइंड लोगों की स्कूल है। तो मैं वहाँ पर आया और वहाँ पर पढ़ा। वहाँ पर मैंने 7वीं तक पढ़ा, लेकिन पहले ज़िंदगी के अंदर नमाज रोज़ा वगैरह तो था, लेकिन कुरान पढ़ने की एक तलब थी जो नहीं मिल पा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है तो आईपॉड वगैरह से सुनते थे, लेकिन उसमें से उसके प्रोनाउंसिएशन और समझ में नहीं आने की वजह से कुछ कर ना पाया। लेकिन आज इस मदरसे में आने के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ कुरान पढ़ना सीख गया हूँ, और जो है तो तीसरा पारा हिफ्ज़ हो चुका है। इस तरह से रहता हूँ। और आइंदा क्या करना चाहते हैं बेटा? दिली कैफियत क्या आपको मदरसे में आने के बाद, क्या दिली सुकून मिला आपको, क्या आपके जज्बात हैं, और आइंदा क्या करना चाहते हैं आप? अभी मदरसे में आने के बाद में बहुत अच्छा लगा, और आगे चल के हाफिज़ भी बनूँगा इंशाल्लाह, और आलिम भी बनूँगा, और साथ ही साथ दुनिया एतबार से टीचर भी बनना चाहूँगा। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुश हुआ मैं आपने ये जवाब दिया वो सुनकर। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। और कोई है भाई? बोलिए। ये हमारा अशफाक जो था, ये जी। कम से कम मुस्लिम स्कूल में था। ये मोहम्मद अशफाक, ये तो गैरों के पास पढ़ता था, नॉन मुस्लिम स्कूल में। ये मोहम्मद अशफाक, ये जो खड़ा हो रहा है ये गैरों में पढ़ रहा था? जी जी, उनकी स्कूल में, उन्हीं जी। के कल्चर में रहा पूरा। जी। अच्छा, तो बताइए आप पहले क्या, वालेकुम अस्सलाम, पहले क्या ज़िंदगी थी, अभी क्या कैसी है भाई, वो बताइए। पहले जो मैं पढ़ाई करता था अहमदनगर में, मेरा नाम अशफाक, मैं अहमदनगर से आया हूँ। जी। मैं पहले अहमदनगर में रामपुर तालुके में पढ़ता था स्कूल में। जी। तो वहाँ पे जो मेरे को दिन की कुछ भी मालूम नहीं थी, नमाज भी नहीं मालूम थी, और रोज़ा भी नहीं मालूम था मेरे को। ओहो। तो रोज़ाना वहाँ शिफ्ट को पूरा किया जाता था, तीन टाइम में। और उसके बाद में मैं इधर पूना में आया, और पहले तो मेरे को नमाज की तरफ थी, नमाज सीखना है, कुरान भी सीखना चाहिए यहाँ पर। तो इसलिए उसके बाद में इधर मदरसे में आने के बाद मेरे को अच्छा फ़ायदा हुआ, तरावीह पढ़ता हूँ, और उसके बाद में रोज़े भी रखना शुरू किया, और अभी नमाज़ पढ़ता हूँ, और मेरे भी तीसरा पारा शुरू है। माशाअल्लाह। तो पहले की ज़िंदगी में और अभी की ज़िंदगी में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? यहाँ पे सब हमको दिली माहौल मिलता है। अच्छा, दिली सुकून है या नहीं? सुकून है। कोई तकलीफ़ कुछ भी तकलीफ अगर है तो बता दीजिए, नहीं, कुछ भी तकलीफ मुफ्ती साहब की खबर मैं लूँगा। कुछ भी तकलीफ। अच्छा माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर बेटा, मजाक कर रहा था बेटा। हाँ जी। और आगे हाफिज बनूंगा इंशाल्लाह। अरे वाह माशाअल्लाह, ये बात बहुत बढ़िया कही आपने। वैसे माशाल्लाह सभी ने एम करके आए जी साहब। जी। हाफिज प्लस कोई ना कोई दुनियाई डिग्री 12 रादर नहीं, ये जो है मैं तो जो हम नाबीना नहीं है उनको भी बताता हूँ जी कि जी सिर्फ मौलवी में न रुकिए, हाँ हाफिज मौलवी में न रुकिए, कद्र नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन जब दुनियावी तालीम लेंगे तो फिर आपकी कदर दोगुना हो जाएगी। जी, और उसके साथ साथ जो दुनियाई लाइन में दिलचस्पी रखते हैं, जी हाँ। मैक्सिमम पीपल है उधर, जी, है ना? जी, और जी। वो साइड में उनकी फील्ड में जाके हम उनको एक्सप्लेन कर सके तो वो बात को समझेंगे। बिल्कुल सही बात है। और सिर्फ हम कुरान हदीस की बात करेंगे उनके पल्ले नहीं पड़ने वाले। जी नहीं नहीं जी, उनकी किताबों के जरिए हमको एक्सप्लेन करते आना चाहिए। सही बात है। हाँ इस लिहाज से हमने डबल एजुकेशन रखा है। जी, नहीं ज़रूरी है। मदरसे के निज़ाम के बारे में कुछ सवाल कीजिए सर। मदरसे के सवेरे से लेकर शाम तक क्या रूटीन है? हाँ 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 हाँ, उस हिसाब से करें। नहीं, बच्चे बताएंगे तो। बच्चे भी बताएं, फिर मुफ्ती साहब से भी पूछेंगे। ये छोटा रेहान खड़े बेटे, ए रेहान खड़े। हाँ, ये अपना सबसे छोटा ये है। नाम- हाँ, ये रेहान इस टाइम दो The youngest person in this organization is what is रेहान। हाथ मत हिलाओ जरा, सुकून। क्या नाम है? रेहान। रेहान, हाँ। हाथ नीचे करो। जी। लिटिल बस। मैं पहले नाम बोल बेटा मेरा अपना पूरा। मेरा नाम रेहान, मैं पहले कोपर का मेरा रुक जाओ बेटा, रेहान नाम सिर्फ होगा, आपके अब्बू का नाम और तखल्लुस? मेरा अब्बू का नाम सलीम। सुनिए,
मेरा नाम जो है ना, मेरा नाम सुनिए पहले, ईसा हुसैन और अमान, मेरा तखल्लुस अमान है। अमान का मतलब पता है हिंदी में उर्दू में क्या होता है? जी नहीं, क्या बोला आप? कौन बोला जी? यानी शांता, सुकून वाला जी। हाँ, तो आप अपना नाम, अपने वालिद का नाम और अपना आप सरनेम जी। पूर्ण नाव सांग. हाँ बोलिए। मेरा नाम रेहान और मेरे अब्बू का नाम सलीम। जी, मेरा सरनेम पठान है। माशाल्लाह। चलिए आगे बताइए अब। क्या बताना क्या बताना है बोलो। हाँ बोल बेटा, मदरसे में सवेरे कब तक शाम तक क्या करता तू? सवेरे कब उठते हैं? फजर में कब फजर पढ़ते हैं? फजर के बाद क्या करते हैं? क्लास कब लगती है? सब बताओ। सुबह कितने बजे से उठते हैं उससे लेके शाम तक, पूरा रात तक सोने जाते हैं तो वहाँ तक क्या क्या करते हैं आप? हाथ बांध ले रहे हैं, तो हाथ बांध ले। हाँ 5:30 बजे उठते हैं। जी 6 बजे तक वजू करते, फिर अजान होती, जी। नमाज होती, फिर जी। यासीन होती, क्या वो फज़ल अमल वो सब पढ़ते, जी फिर दुआ होती है। जी 7 बजे चाय पीने जाते 7 बजे चाय पीने जा। जी, चाय में चाय सिर्फ चाय दी जाती है, कुछ और भी होता है? 6 बज के 45 6 बजकर 40 मिनट को चाय 45 जी 45 को क्या देते हैं? चाय और बटर। चाय और बटर, वो क्या होता है? टोस्ट खा रही। टोस्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, बटर मीन टोस्ट। जी चलिए। चाय 7 बजे तक चाय अच्छी होती है? चाय अच्छी लगती है कि वैसी बनती है? अच्छी लगती है। बराबर से ना, कि झूठ कह रहे हो सच कह रहे हो? नहीं सच और वो बटर भी अच्छा होता है? ये जायका होता है उसके अंदर, मतलब कि टेस्टी है क्या? टेस्टी है? हाँ। हाँ। तू कितने बटर खाता बेटे? मैं कभी एक खाता, कभी दो। कभी एक कभी दो। जाने दो प्लीज. अच्छा, वो जितनी भूख लगती है उतना खाते हो ना बेटा? चलो ठीक है बेटा, चलिए आगे। उसके बाद क्या करते हैं आप? फिर वो नात पढ़े। हाँ माशाल्लाह। स्कूल भर्ती। तो नाच सुनाओगे बाद में क्या? ना सुना बेटे ना। हम तो नहीं, बाद में, पहले इंटरव्यू लें, बाद में नाच सुनाइएगा। फिर 7 से लेके तो 9 बजे तक मदरसा चलता। जी फिर 9 से लेके तो 9:30 तक थोड़ी तरफ पेशाब करने को सब। अच्छा, पेशाब वुज़ू के लिए छुट्टी दी जाती है जी। फिर 9:30 से लेके तो 11 बज के, हाँ 11:30 तक जी स्कूल रहती। स्कूल होती है 11 जी। बजे खाना होता है, फिर वो इंग्लिश पढ़ाना उन्हें। खाने में क्या क्या मिलता है? खाने में गोश्त, सब्जी, दाल, चावल। गोश्त अच्छा होता है? हाँ टेस्टी होता है ना? हाँ। और चावल क्या अच्छा, आपको क्या पसंद है, रोटी या चावल? रोटी पसंद है, चावल पसंद है, सब पसंद नहीं, दो में से एक बोलिए ना, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? है। सबसे ज़्यादा रोटी। रोटी? तो मेरा दोस्त नहीं है। यार जब रोटी क्या चिकन सब बोल बेटे। चलिए आगे। क्या बोल क्या बोलता, खाना बोल जल्दी। मांडा गोश्त भी खाते हो? मांडा गोश्त मुझे आज बहुत पसंद आया। चलिए फिर। फिर वो इंग्लिश के टीचर आते। हाँ जी। 12 से 1 तक। नाम नहीं याद है इंग्लिश के टीचर का? बाद में समीर सर। सफ़ी सर? नहीं, समीर सर। समीर सर जी। 12 से लेके तो 1 तक हम लोग वो इंग्लिश पढ़ाते, वो सुनते। जी। 1 बजे सोते, 1 से लेके तो 2 तक। अच्छा। फिर 2 बजे उठते, 2:15 तक वज़ू करते। हाँ 2:15 बजे तक relax। 2:15 बजे तक। यार बराबर बोल यार बेटा। हाँ चलो। 2:15 को 2:15 को फिर नमाज होती। जी, ज़ोहर की। हाँ। जी फिर 3 बजे मदरसा लगता। जी जी 3 से लेके तो 5 तक, 5 बजे तक। 5 बजे असर की नमाज होती है। जी। 5 से असर से लेके तो मगरिब तक थोड़ा खेलते हैं 1 घंटा। अच्छा। फिर 6 बजे मगरिब की नमाज। अच्छा। 6:10 फिर मगरिब के बाद क्या करते हैं? फिर से मदरसा लगता है। अच्छा मगरिब के बाद जी ईशा तक मदरसा 8 बजे तक। जी फिर 8 बजे ईशा की नमाज होती है। जी खाना खाते, जी
9:50 को खाना खाते हैं। जी। जिसका इसका खाना हो जाता है वो नीचे जाकर पढ़ाई करते हैं। 10:30 बजे सो जाते हैं। कितने बजे? 10:30। 10:30 को सो जाते हैं। मस्ती वस्ती करते नहीं आप? अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, बस बच्चे तो मस्ती करते ही करते हैं। मैं इतना बड़ा होकर मस्ती करता हूँ, आप इतने छोटे के मस्ती नहीं करते। रेहान रिक्शा कैसे स्टार्ट करते बता ऐसा रिक्शा कैसे स्टार्ट करते बता ऐसा देखो। हाँ पैडल वाले के हाँ पैडल साइड में कर दो बस पैसे आगे 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 जगह बस दूसरी वाली बगैर एक मिनट रुक जा, घंटी घड़ी आवाज नहीं आ रही। हाँ अब जी सर आप स्टार्ट एक मिनट रुक अभी। हाँ चलिए स्टार्ट करो। हाँ आगे स्टाइल हाथ का स्टाइल ब्रेक लगा माशाल्लाह। Don't you think these children deserve the life, क्या करते हैं आपके बच्चे? better life than this? अच्छा पढ़ाई करेंगे हम। This is the only way you can help them, and I hope you will help them because they deserve it. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये ब्रेल का कायदा है। जो कुरान शरीफ पढ़ने से पहले हमारे यहाँ बच्चों को जो हम कायदा पढ़ाते हैं, नूरानी कायदा जिसको कहते हैं, ये वही नूरानी कायदा है। ये ब्रेल लिपि में है, ब्रेल ज़बान में है, जिसमें सबसे पहले इब्तिदाई तौर पर इस मदरसे में बच्चों को यह कायदा पढ़ाया जाता है। इसमें हुरूफ की पूरी शनाख्त है और फिर उसके साथ साथ जब ये कायदा मुकम्मल हो जाता है तो फिर कुरान करीम दिया जाता है। ब्रेल एक ज़बान है जो ऐसी उभरी हुई नुक्तों वाली ज़बान होती है, जिसको नाबीना बच्चे उंगली से महसूस कर कर पढ़ते हैं। ये पूरी ये नूरानी कायदा है। ये मोहम्मद फ़िरोज़ है हमारे मदरसे के तालिब इल्म, जो आपके सामने नूरानी कायदे में से पढ़कर सुनाएंगे। और ये उसी के साथ साथ ये नूरानी कायदे के साथ साथ ये उसकी शरह है। ये नूरानी कायदे की शरह है जो साइटेड लोगों के लिए, आँख वालों के लिए समझने में सहूलत हो कि भाई एक तरफ ब्रेल का लिखा हुआ है और दूसरी तरफ वही जुमला अरबी में लिखा हुआ है, ताकि हम उसको कंपेयर कर सके कि भाई बच्चा जो पढ़ रहा है कहाँ तक सही पढ़ रहा है, क्या गलत पढ़ रहा है, ताकि हमारी समझ में आए। ये जो जुमले हैं, यही जो जुमले हैं वो इधर अरबी के अंदर लिखे गए हुए हैं। जी ये हमारे मौलाना नईम साहब हैं, मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि इसमें से खोल कर कोई भी पेज बच्चे से पूछे, इंशाल्लाह बच्चा आपको पढ़कर सुनाएंगे। थोड़ा आगे सफ़ा नंबर 20 निकालो बेटे। सफ़ा नंबर 20 इसका लीजिए आप। सफ़ा नंबर 20। अब सफ़ा नंबर 20 के ऊपर ये ब्रेल में है, जो बच्चा पढ़ेगा ब्रेल के अंदर जो बच्चा पढ़ेगा ये पूरा ब्रेल लिपि में है और इसी का अरबी तर्जुमा इधर किया गया है कि बच्चा अरबी में क्या पढ़ेगा पूरा के पूरा। अभी मोहम्मद फ़िरोज़ पढ़ रहे हैं। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनवीन जोर से। तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ एक सा यानी बराबर होती है। अन बन नीचे करें। दन दन। ये इधर आप देखिए, ये बच्चा ब्रेल में पढ़ रहा है। हाँ ये अरबी इधर पढ़ रहा है ब्रेल। हाँ मिस्रन अमवातन रवादन मराहन ज़ौजन मरीज़न सगीरन। इनका भी लोग पढ़ते हैं। हाज़िरतन बाऊज़तन सालिहन। आप इसको हिज्जे से पढ़िए आप ज़रा। क़ाफ़ ज़ेर की हाँ रा ज़बर रा कीरा दाल ज़बर दा कीरादा दाद व ज़बर तन कीरादतन दा ज़ेर ती जीवन ज़बर जा ईजा रा ज़बर रा ईजारा दाद व ज़बर तन ईजारतन बीम अलिफ ज़बर मा हमज़ा दो ज़बर अन मा अन। बस
इस तौर पर ये नूरानी कायदा पढ़ाया जाता है और ये नूरानी कायदा ख़त्म होने के बाद फिर नाबीना बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है। ये जो कुरान शरीफ दिखाई दे रहा है ये बिरेल का कुरान शरीफ है। ये 6 जिल्दें है, 6 पार्ट है, 26 से लेकर 30 पारे तक। हर एक जिल्द में 5 पारे होते हैं। ये 26वें पारे से लेकर 30वें पारे तक है, 5 पारे हैं। और ये कुरान शरीफ साउथ अफ्रीका से मंगाया हुआ है, ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इंडिया में, ये साउथ अफ्रीका से मंगाया गया है। अब ये पूरे 5 पारे हैं, 26 पारे से लेकर 30वें पारे तक। अब इसके अंदर से हमारे मोहम्मद आमिर जो हमारे औरंगाबाद के स्टूडेंट है, ये इसमें से आपके सामने 30वां पारा पढ़कर सुनाएंगे। 30वें पारे में से एक सूरत पढ़कर सुनाएंगे। तीसवें पारे में से वशम्स व दुहाहा पढ़कर सुनाएंगे जोर से, गर्दन ऊपर करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि व दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़्लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअथ अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फकज़्ज़बूहु फअक़रूहा फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फसव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। माशाअल्लाह। ये मोहम्मद आमिर है। इस तरह इन बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह 30वां पारा ख़त्म किया। ये जो पूरी क्लास है जी। ये हिफ्ज़ क्लास है, ये पूरी की पूरी क्लास इन बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल सिर्फ 2 महीने के अंदर नूरानी कायदा मुकम्मल किया और 3 महीने के अंदर पूरा 30वां पारा ख़त्म भी किया, नाज़िरा और हिफ्ज़ भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस साल ये बच्चे इनका पहला पारा हिफ्ज़ हो चुका है, दूसरा पारा भी हिफ्ज़ हो चुका है, तीसरा पारा अल्हम्दुलिल्लाह इनका करीबुल ख़त्म है। दुआ कीजिए अल्लाह पाक इनको जल्द से जल्द हाफिज़ कुरान बनाए। आमीन। ये पूरी हिफ्ज़ की क्लास है। आमीन जी, माशाअल्लाह। क्या बोल रहे हैं? लेकर जी आपसे जी, ये हिफ्ज़ की क्लास है पूरी की पूरी जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये हाफिज़ अब्दुल्ला साहब है हमारे मदरसे की, इन्होंने भी बिरेल में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ की तालीम की ट्रेनिंग ली है माशाअल्लाह। हाँ, और इन्हीं को हिफ्ज़ का उस्ताद बनाया गया है माशाअल्लाह। बच्चों को ये बिरेल लिपि में हिफ्ज़ की तालीम भी सुनते हैं और आगे भी उनको सबक देते हैं माशाअल्लाह। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब जलगांव से ताल्लुक़ है जी। आगे सर ये कौन सी क्लास है आप ही बोलेंगे ना उर्दू में, फिर मैं इसको जी। सबटाइटल कर। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे में स्कूल भी पढ़ाई जाती है और मदरसा भी पढ़ाया जाता है। चूँकि ऑल और महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम पर्सन की ब्लाइंड स्कूल नहीं है जी। जितनी भी ब्लाइंड स्कूलें हैं वो या तो ईसाइयों की हैं या तो गैर मुस्लिमों की जी। हैं। और दोनों जगह हमारे बच्चों के ईमान महफूज नहीं है। बल्कि अगर ईसाइयों के हमारा बच्चा एडमिशन लेता है तो वहाँ स्कूल के साथ साथ उसको बाइबल पढ़ाई जाती है और चर्च ले जाया जाता है। और अगर गैर मुस्लिमों के हमारा बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो स्कूल के साथ साथ उसको गीता पढ़ाई जाती है और दिन में 3 मरतबा प्रार्थना के नाम पर, दुआ के नाम पर शिरकिया कलिमात ऐसे पढ़ाए जाते हैं कि बच्चा उसको पढ़ते से इस्लाम से खारिज हो जाता है। और रोज़ाना ये 3 मरतबा पढ़ाए जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाए कि जब 10 से 12 साल बच्चा इस तरह के कलिमात पढ़ेगा तो जाहिर बात है वो कुफ्र के अंदर पुख्ता हो जाएगा, इस्लामी बुनियादें उसकी बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगी और इस तरह से बच्चा मुर्तद हो जाता है। कई बच्चे हो चुके हैं। अल्लाह हमारी पकड़ ना फरमाए और हमें दरगुजर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी फ़िक्रों की बुनियाद पर इस स्कूल की बुनियाद रखी गई है। ये असल में इनके ईमान की हिफाजत की जगह है, इनकी ईमान की हिफाजत की जा रही है इस मदरसे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्कूल भी पढ़ रहे हैं। जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं ये 1ली से 4थी की क्लास है पूरी की पूरी। यहाँ पर बच्चों की तालीम होती है 4थी तक की। और ये हमारे अयाज सर हैं
जो तकरीबन 10 किलोमीटर दूर से रोज़ाना अप डाउन कर कर आते हैं और बच्चों को सबक देते हैं, सबक पढ़ाते हैं। इनका भी क्लास का सबक चल रहा है। कौन सा पीरियड चल रहा है अभी आपका? ये साइंस का पीरियड चल रहा है। हाँ, साइंस का पीरियड चल रहा है और हमारे आया सर अभी पढ़ेंगे। आप पढ़िए अपना लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, जब अपने को एक्सरसाइज करनी होती है तो एक्सरसाइज से पहले जो तैयारी की जाती है वो तैयारी का इसमें कुछ मराठी में अनुवाद किया गया हुआ है। जैसे कि हाथांचे व्यायाम, यानी हाथ का जो व्यायाम होता है उसको पांच प्रकार डिवाइड किया गया है। और दूसरा है माने से व्यायाम, यानी गर्दन की एक्सरसाइज, जिसकी गर्दन की एक्सरसाइज करना हो उसमें भी उसको 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। और कमरे से व्यायाम, यानी कमर की एक्सरसाइज करना हो तो उसमें उसको 6 प्रकार में डिवाइड किया गया है, यानी 6 प्रकार की कमर की एक्सरसाइज अपन कर सकते हैं। और दूसरा है पायन से व्यायाम, यानी पाँव की हलचल। ये पाँव की हलचल की एक्सरसाइज जो है उसको 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है, यानी 4 प्रकार आपण पैर की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आता आपण नवीन व्यायामांचे प्रकार शिकूया। जैसे कि अभी ये सब प्रकार होने के बाद अपन अभी नई एक्सरसाइज देखेंगे। व्यायाम करण्याआधी किंवा खेळ खेळण्याआधी पुढील व्यायाम हालचाली करण, त्यामुळे तुम्हाला खूप उत्साहित वाटेल। ये जो प्रकार बताए गए इसमें, ये कौन सा भी खेल या तो एक्सरसाइज करने से पहले आपने आपको फ्री करने के लिए पहले इसमें कहा गया है, जैसे कि 5 वेळा सावकाश हाथ वर खाली करा। यानी अगर आपको खेल खेलना है, एक्सरसाइज करना है तो उससे पहले अपने बॉडी को पूरा फ्री करना है, तो उसके लिए 5 बार हाथ ऊपर नीचे करना है। और उसके बाद 5 वेळा सावकाश हाथ बाजूला जवळ घ्या। इस तरह से स्कूल की इनकी पढ़ाई दी जाती है। ये ब्रेल लिपि में होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे, इनका जो स्कूल का सिलेबस है ये पूरा 10वीं तक ब्रेल लिपि में अवेलेबल है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है जी। हाँ, ये सब्जेक्ट है। नॉर्मल बच्चा सब्जेक्ट पढ़ेगा, जैसे कि बच्चे दूसरी के बच्चे फिजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है जी हाँ। तो दूसरी के बच्चे के जो सब्जेक्ट होंगे वही सब्जेक्ट ये नॉर्मल बच्चे पढ़ेंगे। अच्छा। टोटल इतना है कि वो बच्चे आँख से पढ़ेंगे या उंगली से पढ़ेंगे, ये पूरे की पूरी उनकी लैंग्वेज। जी। ये हमारी 7वीं की क्लास है जी। और ये हमारे बशीर सर हैं जो पूना शहर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर से आते हैं और हमारे बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं। आप भी ब्लाइंड हैं। अच्छा। और आप ब्रेल लिपि में ही बच्चों को तालीम देते हैं जी। ये पूरी की पूरी 7वीं की जमात है। और इसमें कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है अभी? इंग्लिश का सब्जेक्ट चल रहा है जी। हाँ, तो हमारे से ये पूरे पूरे जितने बच्चे बैठे 7वीं के, ये सब गर्दन ऊपर करो बेटे जरा। हाँ हाँ, वो आगे का बच्चा अब्दुल भाई थोड़ा आगे आ जाए। हाँ बस जी। आज आपण काळ शिकत आहोत। ठीक आहे, काळ मुख्य काळ 3 आहे, प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स अँड फ्युचर टेन्स। आणि त्यांचे उपप्रकार सिंपल पास्ट टेन्स, कंटिन्यू पास्ट टेन्स अँड परफेक्ट पास्ट टेन्स, प्रेझेंट कंटिन्यूअस अँड प्रेझेंट सिंपल अँड प्रेझेंट परफेक्ट, अँड देन आफ्टर फ्युचर कंटिन्यूअस, फ्युचर परफेक्ट अँड फ्युचर सिंपल। यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा आय गो मीन्स मी जातो। ठीक है, उसका अनेक वचन है वी गो। अनेक वचन क्या है? वी गो, मैं जातो। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पर्सन यू गो, तू जातो। यू गो क्या बोलेंगे? तू जातो। इसके बाद में उसका अनेक वचन है तुम्ही जाता, यू गो। यू गो सेम है सेकंड पर्सन में और सिंगुलर में और प्लूरल में एक ही होगा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पर्सन ही गोज, GOES, ही गोज, वो जाता, वो तो जातो। ठीक है, और जो है फिर लड़की रहेंगी तो ती जाते, शी गोज। और उसके बाद में अनेक वचन इन सबका दे गो। ठीक है, तो ये हुआ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस बस। ठीक है। The Basir sir was speaking in English, Yeah. and then
he was explaining them to the Maharashtrian language, which is called Marathi. Because their main language is Marathi, that's why the sir have to explain them in Marathi, so they can understand English properly. MashaAllah, Sir Basir have dedicated himself very deeply, and I have talked to him, and he want to talk to me for the future of these children. So inshallah we will have some discussion, and I hope I will be very helpful to these people in future inshallah. Jazakallah khair Bashir साहब, जज़ाकल्लाह खैर आपका। ये मैथ्स की पार्टी है जी, जिसमें इन बच्चों को हिसाब किताब सिखाया जाता है, और ये बच्चे इस पार्टी के ऊपर पूरा हिसाब किताब करते हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे डिवाइडेड हो। आप देखिए कि ये पट्टी के साइड में एक तरह से ये पार्टी बनी हुई होती है, पेटी बनी हुई होती है, और इसमें जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये लोहे के टुकड़े होते हैं, इसके ज़रिए ही बच्चे हिसाब किताब करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देखिए कि इसके डायरेक्शन होते हैं। अगर ये इस तरह से, इस तरह का इसका डायरेक्शन इस कोने पर हो तो ये 1 होगा, इसका डायरेक्शन अगर चेंज हो गया तो 2, इसी तरह डायरेक्शन चेंज हो गया तो 3, 4, 5, 6, 7, 8। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से पूरा डिजिट बदल जाएगा। जी। और उसके बाद 9 के लिए ये इस तरह से उल्टा, ये आप इसके देख रहे हैं, इसके ऊपर 2 डॉट दिख रहे हैं पूरे के पूरे। जी, ये डॉट दिखाई दे रहे हैं। जी, ये इस तरह से इसको रख दिए तो 9 हो जाता है। इसके साथ किसी एक को मिला दे तो फिर ये 10 हो जाएंगे। इस पर बच्चे पूरा हिसाब किताब करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं किस तरह हिसाब किताब किया जाता है। जी, आ रहा है, बहुत बेहतरीन। आपको समझाना है ना इसको? जी, ये मोहम्मद सरताज है, ये आपके सामने 10वीं क्लास का बच्चा है, और ये आपके सामने हिसाब किताब कर बताएंगे। जी, ये उनके उस्ताद उनको बोलेंगे और ये हिसाब किताब करेंगे। 4 लाख 75,000 950 plus 7 lakh 83,000 785 4,75,950 plus 7,83,785। अच्छा, प्लस का साइन क्या होता है? प्लस का साइन उल्टे 3 है ना, इसको उल्टा कर देंगे। ये जो किया आपने, ये प्लस के लिए। अच्छा, ये प्लस के लिए है। जी ठीक। $12,59,735। जोर से फिर से बोलो। 12,59,735। 12,59,735। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पूरा हिसाब आपके सामने बच्चे ने लाखों में करके बताया। हम समझते हैं कि नाबीना बच्चे माजूर होते हैं
और ये कुछ कर नहीं सकते। हालांकि हकीकत ऐसा नहीं है, बल्कि नाबीना बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की कि उनकी सही गाइडेंस की जाए, सही उनकी रहबरी की जाए, तो ये बच्चे बहुत कुछ तरक्की कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि बच्चे लाखों में हिसाब कर रहे हैं। अभी हमारा कोई साइटेड आदमी भी, साइटेड बच्चा, मैं चैलेंज करूँगा, साइटेड बच्चा इतनी जल्दी लाखों का हिसाब नहीं कर बताएगा। वो तो अलग बात है कि अभी कंप्यूटर का दौर आ गया और मोबाइल का दौर आ गया तो आसानी होगी, वरना ये जो है ये दिमाग का काम है। कैलकुलेटर यूज करके साइटेड वाला जो बताएगा ये उंगलियों से हिसाब कर रहे हैं जी। आप दिमाग का यूज करके आप उसका हिसाब बिल्कुल सही, बिल्कुल। और आपके सामने हमारे बच्चे ने दिमाग का यूज करके पूरा हिसाब किताब जी हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्लेट है, ये पूरी ब्रेल लिपि की स्लेट है, जिसमें बच्चे ब्रेल के अंदर लिखते हैं, पूरा के पूरा इसमें लिखते हैं पूरे के पूरे बच्चे। और आपको देखें कि ये स्लेट ये जब खुलती है तो इसमें डॉट होते हैं। ये 6 डॉट आपको दिखाई दे रहे, 6 डॉट 6 डॉट 6 डॉट, क्योंकि ब्रेल लिपि का जो भी डिजिट है वो 6 डॉट के अंदर ही बनेगा, 7वां कोई डॉट उसके अंदर नहीं आएगा। तो इस तौर पर बच्चे इसको लिखते हैं। ये जो इसका स्पेशल पेपर होता है, स्पेशल पेपर होता है, मोटा होता है, इस तौर पे उसको रखा जाता है। हाँ, और रखने के बाद इसको इस तरह से बंद किया जाता है। अब ये पूरा लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद ये पूरा पैक हो गया। अब पैक होने के बाद जैसे कि हर ब्लॉक के अंदर 6 डॉट है। अब जिस हर्फ के लिए जितने डॉट की ज़रूरत है, ये उसको ऊपर से इस तरह की एक पेन होती है, ये कलम होता है बच्चों का, नाबीना बच्चों का। ये इस तरह से जिस हर्फ के लिए जितने डॉट की ज़रूरत है उतनी मरतबा प्रेस करेंगे तो उतने डॉट उस पर उभर जाएंगे। इस तरह से एक चलेंगे। मिसाल के तौर पर पूना, तो पी के लिए जितने डॉट इसमें डालेंगे, ओ के लिए, फिर एन के लिए, फिर ए के लिए। एक तरफ से लिखेंगे राइट से और लेफ़्ट साइड से पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे मोहम्मद फ़िरोज़, ये आपके सामने लिख कर बताएँगे। जी मोहम्मद फ़िरोज़, थोड़ी गर्दन ऊपर करो आपकी। आप लिखें, आज हमारे मदरसे में लंदन से हाजी ईसा हाजी ईसा अमान साहब तशरीफ़ लाए हैं। हो गया। चलो अभी देखिए, ये आपके सामने जो बच्चे ने लिखा, ये एक साइड से लिखा। अब लिखने की वजह से हर हर्फ के लिए जितने डॉट की ज़रूरत थी उतना डॉट दिया गया। अब ये पूरे हुरूफ उभर गए। अब इसको लिखेंगे एक जानिब से और पढ़ेंगे दूसरी जानिब से। अब इस तरफ से उसको लेफ़्ट साइड से पढ़ा जाएगा। ये बच्चा आपके सामने पढ़कर सुनाएगा क्या लिखा है। आज हमारे मदरसे में लंदन से हाजी ईसा साहब तशरीफ़ लाए। माशाअल्लाह जी। You have seen him writing and reading in Braille. Now we're going to test it for your satisfaction. So let's see. ये अब्दुल रहीम है। जैसे कि आपने देखा मोहम्मद फ़िरोज़ ने लिखा। मोहम्मद फ़िरोज़, हाँ, ये बच्चा यहाँ पर मौजूद नहीं था जी, नहीं, दूसरे रूम में था जी हाँ बिल्कुल। अब ये मोहम्मद अब्दुल रहीम आपको पढ़कर बताएंगे कि मोहम्मद फ़िरोज़ ने क्या लिखा है जी। ज़रा ज़ोर से पढ़े आप, पहले चेक कर ले, फिर इसको पढ़कर चेक कर ले पहले। हाँ, पहले आप पूरा चेक कर ले। जी पढ़कर सुनाए ज़ोर से। आज हमारे मदरसे में लंदन से हाजी ईसा साहब तशरीफ ले आए हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। So now you have seen it. The other
फिरोज, क्या नाम फिरोज था? फिरोज हैव wrote it and read it. Now I call another student, Abdul Rahim, and he have just filled it for once, and then he read the whole sentence. You can see that this braille can make big difference in their life. So I'm again requesting you all Muslims to donate generously. Jazakallah khair. असल में ये तो एक बहुत अच्छा काम है हमारे लिए, बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये काम जो है हमारे तुम्हारे सबका मिलजुल कर करने का काम है, ये होल कम्युनिटी का काम है। इस लिहाज से मैं अपील करूँगा हमारे हाजी साहब से कि ये जो है लंदन में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, तो वहाँ पे जितने भी स्कूल्स वगैरह हमारे इंस्टीट्यूट है ब्लाइंड लेवल से, उसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है वो हमारे तक पहुँचाए, ताकि हमारे बच्चे भी और लोगों से आगे निकल आए। यहाँ पे जो है यहाँ की कम्युनिटी के अंदर ब्लाइंड पर्सन को तो बहुत दबाया जाता है, बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। तो इस लिहाज से जो है इनका जॉबलेसनेस बहुत लॉन्ग पीरियड तक चलता रहता है, इस लिहाज से फाइनेंशियली बैकवर्ड होते हैं। इस लिहाज से मैं सबसे अपील करता हूँ कि हर एक जो है इसके अंदर ताउन भी करें, और उसके साथ साथ जो है कोई ऐसी प्रोडक्शन हो जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में रहने की वजह से आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होती है, तो वहाँ पे ऐसी कोई भी प्रोडक्शन आपको पता चलती है जो मार्केट में भी वैल्यूएबल हो और करने में ब्लाइंड के लिए एक कंफर्टेबल हो। ऐसे तरीके जो भी प्रोडक्शंस होंगे वो हम तक पहुँचाए जाए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, आप खुसूसी हमारे लिए सबके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हमारी जो मेहनत की कमाई है वो सही रास्ते में सही जगह लगे। और इस इदारे को देखकर ब्लाइंड पीपल जितने बच्चे हैं और आप जो हैं माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, बड़ी खुशी हुई ये देखकर। अल्लाह ताला आपके इस काम को कबूल फरमाए और हमारा सबका आखिरत में इसका नजात का ज़रिया बना दे। जज़ाकल्लाह। आपने जो सजेशन जो दिए हैं, आगे भी आपके दिमाग में कुछ आए और अल्लाह ताला डाले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाहु अकबर। हाँ बस चल रही जी। बेटा बिस्मिल्लाह में हाथ बैठाइए, खाइए और बताइए। एक एक दो पीस दो, एक एक दो भी, इसका एक एक पीस सीधे हाथ में। हमारे हाजी सामान साहब बच्चों को अपने मुबारक हाथों से मिठाई तकसीम करते हुए जी इसके मुंह में डालें। अच्छा दीजिए, मैं देता हूँ उसको। चलिए लो बेटा। मैं उसको शर्म आ रही है। शर्म नहीं आ रही? लो बेटा थोड़ा। आपको मिली नहीं मिली? नहीं मिली? नहीं मिली। अमीन लो बेटा। लो ऊपर करो हाथ बेटा। लीजिए बेटा। हाथ ऊपर करो। हाँ मेरा हाथ ऊपर करो। हाँ नाम नहीं जानता मैं। चलो अल्ताफ, इश्तियाक, ये बेटा रह गया। कौन बाकी रह गया? 2 नंबर थोड़ा। हाँ अच्छा 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 ये। अरे भाई मांगा करो ना यार कि मैं रह गया। बिस्मिल्लाह पढ़ो। अभी इसी तरह लाओ, दूसरी मिठाई लो। लाइए पीछे से तकसीम शुरू कीजिए ये सब। नहीं पीछे से खा रहे ना। हाँ। ये खाना हो गया अभी। ये सब बराबर है पीस? जी हाँ, एक एक पीस एक एक बच्चे को दीजिए आप। बहुत बड़ा है। हाँ नहीं तो दो डबल टिबल पीस ले रहे हैं आप शायद। नहीं खा रहे हैं। मुझे नहीं जाएगा, इतना बहुत बड़ा हो जा रहा हो। वो खा रहे हैं। हाथ धुल लेंगे वो। हाँ धो लेंगे। हाँ लेंगे। हाँ धो लेंगे तो फिर दे देता हूँ। हाथ धुल लेंगे, कोई बात नहीं। बेटा हाथ धो लो। जज़ाकल्लाह खैर। हमारा हाजी साहब ये अपना नाम बोलिए ना। आप नाम बोलते जाइए। जी, पहले नंबर पे अब्दुल रहीम, उसके बाद
आकिफ, उसके बाद इनको मिठाई दे रहे ताकि वो हाथ उठा जी यूनुस, हाँ, सरताज, हाथ उठाओ बेटा, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। उसके बाद बड़ा अब्दुर्रहीम, हाथ बढ़ाओ आगे, आधा ऊपर करो, जज़ाकल्लाह खैर। अशफाक, उसके बाद अरबाज मज़हर, ये हमारे अयाज सर है। सर को बढ़ाई सर। जी नहीं बच्चों लोग कितने सर को उनके बदन के हिसाब से दीजिए। गिर के आपके पैर पे थोड़ा माफ कीजिएगा। चलो बेटे, अब कौन रह गया? तीन लोग, आप हाथ जाओ। बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ बेटे आगे। हाँ चलो, बाजू में कौन है? हाथ बढ़ाओ, बढ़ाया उसने। आपको दिया मैंने, आप लीजिए। ओहो, हाथ पे गिरा के बोलिए नाम लीजिए आप। ओहो चलो आमीन, हाथ बढ़ाओ, चलो अल्ताफ, हाथ बढ़ाओ बेटे, इश्तियाक, जी एक मिनट। हाँ वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह बोलो खाने के बाद। खैर, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। अल्लाह पाक जज़ाकल्लाह खैर। हाजी साहब की उम्र में भी बरकत अता फरमाए और हर साल ये तशरीफ़ लाते रहे और इसी तरह आप लोगों को अपने मुबारक हाथों से खिलाते रहे। पहले कर ले, मुझे दाएं हाथ से। अब तो चलिए हुआ, सबको मिल गया दूसरा राउंड। जी, बैठो अपनी जगह पे, बैठो अभी हाथ बांध दोनों भी बाकी है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाई तीसरा दो। चलो आमीन, हाथ बढ़ाओ बेटे, चलो। अल्लाह पाक हाजी साहब को भी जज़ाए खैर अता फरमाए, इनकी अहलिया को भी जज़ाए खैर अता फरमाए कि इतनी दूर से उन्होंने हमारे बच्चों की फ़िक्र की। और अल्लाह पाक आपकी वालिदा को भी सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, जो हमारे बच्चों के लिए फ़िक्रमंद है और कोशिशें कर रही हैं। देखा है माना नहीं। हाथ बढ़ाओ, ऐसे पिला तुमको। मैं आ रहा हूँ उस तरफ, आ रहा हूँ मैं। इधर नहीं, कौन? इसको नहीं मिला, किसको नहीं मिला? नहीं मिल गया, मिल गया। डबल आते ना इंशाल्लाह, आते हैं। जोड़ा। लास्ट में बाकी मुबारक करना उनके। यहाँ कौन रह गया? यार मदरसे में आए हैं ना। ये भी अब्दुर्रहीम यूपी मिले आपस, दूसरे तीसरी नहीं नहीं मिले। इधर इधर कौन रह गया? तीनों बाकी है। हाँ, छोटे वाला रह गया। वो तो अभी दूसरा राउंड खत्म नहीं किया। खाओ, आहिस्ता आहिस्ता खाओ बेटा। उसके हाथ में दे दो, वो खाते रहेगा। जी, दूसरा हाथ जो खाली ये उसमें अलग से दे। है, ये अलग से है। हो गया? पोजीशन आपका है? सबको मिल गया। और किस कौन बाकी है जिसको नहीं मिला? पेड़ा किसको नहीं मिला? हाँ, हंजला को नहीं मिला। हंजला और आमिर को मिला पेड़ा। हाँ, और क्या? और कौन बाकी रह ये गया? अब्दुर्रहीम को नहीं मिला। आयाज सर हमारे आया सर को नहीं मिला? जी नहीं। अरे भूल गया मैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि इसका तकलीफ बना तो क्या है? लीजिए, मत कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। और हम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हाजी साहब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम रईस अहमद है। मोहतरम हज़रात, जामिया अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम
जो नाबीना बच्चों का इदारा है, जिसमें बच्चों को स्कूल की भी तालीम दी जाती है और मदरसे की भी तालीम दी जाती है, इस मदरसे के ताल्लुक़ से मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इस मदरसे की बुनियाद किस तरह पड़ी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले मैंने बिरेल ज़बान में कुरान करीम की तालीम सीखी और फिर बिरेल ज़बान में कुरान करीम की तालीम सीखने के बाद शहर पूना के अंदर नाबीना बच्चों को तलाश किया। तो बड़ी उम्र के नाबीना बच्चे हमें मिले। पहले एक बच्चा मिला, फिर उसके ज़रिए दूसरा बच्चा, फिर उसके ज़रिए तीसरा बच्चा। कई दिनों की मेहनत के बाद तकरीबन 8 से 10 बच्चों से मुलाकात हुई और हमने उनको बताया कि भाई बिरेल ज़बान में कुरान शरीफ मौजूद है, अगर आप सीखने का शौक़ रखते हैं तो आप आइए, हम इंशाअल्लाह आपको सिखाएँगे। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद में हमने उसकी शुरुआत की। ये बच्चे इतवार के दिन आते थे और उनको बिरेल ज़बान में हम कुरान शरीफ सिखाते थे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ऐसे ऐसे लोग जिनकी उम्र 40 साल के लगभग थी, यानी 20 साल की उम्र से लेकर 40 साल के दरमियान इनकी उम्र थी, लेकिन आप सुनकर हैरत करेंगे कि ये नमाज के फ़राइज़ से भी नावाकिफ़ थे। इनकी नमाज़ें भी दुरुस्त नहीं थी, कलमे भी इनको याद नहीं थे। फिर इन पर मेहनत की गई और इन पर मेहनत की कर अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नमाज़ें दुरुस्त की गई और इनके कुरान पाक पढ़ने का शौक़ इनमें पैदा किया गया और उनके कुरान की तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। जब ये सिलसिला चलता रहा तो हमारे नौजवान साथियों ने फिर हमें मुतवज्जे किया कि भाई मुफ्ती साहब, आप हमें तालीम तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो नाबीना बच्चे हैं, जो अभी स्कूल की उम्र जिनकी हैं, जो स्कूल की तालीम हासिल कर रहे हैं, आप उनकी तरफ मुतवज्जे होए और आप ज़रा उनकी फ़िक्र करें। वो इसलिए कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम इदारा नहीं है जहाँ पर कि बच्चों की स्कूल का तालीम का निज़ाम हो। जितने भी स्कूल के इदारे हैं वो या तो ईसाइयों के हैं या तो गैर मुस्लिमों के हैं। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, जब हमारा नाबीना बच्चा, मुस्लिम नाबीना बच्चा मजबूरी की हालत में उनकी स्कूलों में एडमिशन लेता है, तो अगर वो ईसाई की स्कूल होती हैं तो हमारे नाबीना बच्चों को स्कूल के साथ साथ बाइबल पढ़ाते हैं और चर्च चले जाते हैं। और अगर गैर मुस्लिम की स्कूल होती हैं तो हमारे बच्चों को स्कूल के साथ साथ गीता पढ़ाते हैं और दिन में 3 मरतबा प्रार्थना के नाम पर वो ऐसे कुफरिया और शिरकिया कलिमात पढ़वाते हैं कि जिसको पढ़कर एक मर्द मोमिन इस्लाम से खारिज हो जाता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि जब जो बच्चा दिन में 3 मरतबा शिरकिया कलिमात पढ़ रहा हो, 10-12 साल जब उनके आगोश में रहेगा तो उसके ईमान की क्या हालत होगी। और आप यकीन जानिए कि अक्सर नाबीना बच्चे जो होते हैं वो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके माँ बाप खेतों में काम करने वाले होते हैं, उनके घरों का भी कोई दीनी बैकग्राउंड और माहौल नहीं होता है। माँ बाप तो चाहते हैं कि बस उनके बच्चों को किसी ने संभाल लिया, कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनके बोझ को उन्होंने बर्दाश्त कर लिया तो हमको राहत मिल गई। वो उसके लिए कोई फ़िक्रमंद नहीं होता, वो समझते कि हमारी मुसीबत हमारे सरों से टल गई। लेकिन इस तरह जब 10 से 12 साल हमारा बच्चा गैरों की स्कूल में रहता है तो यकीन जानिए कि उसकी ईमान की बुनियादें बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी होती हैं और हत्ता कि कई बच्चे मुर्तद हो चुके हैं, इस्लाम से निकल चुके हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमारे मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, बिरादरी की तरफ से, हमारे नाबीना बच्चों को नज़रअंदाज करने का। तो हमारे जो बड़े बच्चे थे उन्होंने मुझे इस तरह मुतवज्जे किया कि मुफ्ती साहब आप नाबीना बच्चों की फ़िक्र करें और पहली फ़ुर्सत में इनकी स्कूल का कोई इंतज़ाम करें ताकि हमारे नाबीना बच्चे बातिल के माहौल से बचकर इस्लामी माहौल में दुनिया की तालीम भी हासिल करें और दीन की तालीम भी हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस फ़िक्र को हमने ओढ़ा, अल्लाह पाक से दुआएँ मांगी और दुआएँ मांगने के बाद बड़ों से मशवरा किया और फिर इस तरफ कदम उठाया और फिर हमने नाबीना बच्चों को तलाश करना शुरू किया। सुबह महाराष्ट्र लेवल पे हमने नाबीना बच्चों को तलाश किया। एक बच्चे का नंबर मिला, उसके घर तक पहुँचे, उनके घर पर विज़िट किया, हम क्या पढ़ाने वाले उनको समझाया, माँ बाप को खूब तवज्जो दिलाई। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत की। एक एक बच्चे को हासिल करने के लिए हमको 4-4 महीने और 6-6 महीने की मेहनत करना पड़ी। बार बार उनसे फ़ोन पर कायम कांटेक्ट करना पड़ा, उनके घरों पर जाकर विज़िट देना पड़ी, हम क्या पढ़ाना चाहते हैं उनको सब बताना पड़ा। और फिर बहुत सारे लोग इस तरह पीछे हटने लगे कि भाई हमको स्कूलों में गवर्नमेंट की तरफ से तमाम फैसिलिटी मिलती हैं, तमाम चीज़ें फ्री में मिलती हैं, आपके वहाँ तो चार्जेस लगेंगे। तो हमने कहा कि भाई इंशाल्लाह आपको भी कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगी, हम भी आपको तमाम वो फैसिलिटीज़ सहूलतें फ्री में देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तौर पर हमने 20 बच्चों को जमा किया। ये अल्लाह पाक का एहसान है कि बहुत कम मुद्दत में हमको 20 बच्चे मिले, क्योंकि नाबीना बच्चों की तादाद और क्वांटिटी बहुत कम होती है। अब यकीन जानिए एक बच्चा 10 के बराबर है, जहाँ आज हमारे इदारे में सिर्फ 20 बच्चे नहीं बल्कि 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप उसका अंदाज़ा कीजिए। अब फिर आपको ताज्जुब होगा कि जब बच्चे हमने हमारे मदरसे में लाए
तो ये बच्चे ईमानी एतबार से बिल्कुल कमज़ोर थे। इन बच्चों की नमाज तक दुरुस्त नहीं थी, नमाज क्या है इनको पता नहीं थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन पर मेहनत की गई, उनकी नमाज दुरुस्त की गई और उनको बुनियादी चीज़ें सिखाई गई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसे में पहली से लेकर 10वीं तक स्कूल की तालीम का मुकम्मल इंतज़ाम है और उसके साथ साथ मदरसे की तालीम का भी मुकम्मल इंतज़ाम है, जिसमें ब्रेल ज़बान में नूरानी क़ायदा और इसी तरीके से ब्रेल ज़बान में कुरान करीम की तालीम दी जाती है। ये 20 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पढ़ रहे हैं, पहली से लेकर 10वीं तक तालीम भी हासिल कर रहे हैं और उसके साथ साथ आधे वक्त में स्कूल की तालीम हासिल करते हैं और आधे वक्त में मदरसे की तालीम हासिल करते हैं। मदरसे की तालीम में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने नूरानी क़ायदा मुकम्मल किया। नूरानी क़ायदा मुकम्मल करने के बाद आज बच्चे कुरान करीम नाज़िरा भी पढ़ रहे हैं और हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। उसकी तरतीब ये होती है कि एक दिन बच्चा नाज़िरा याद करके सुना देता है और दूसरे दिन हिफ्ज़ याद कर सुनाता है। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह 4 पारे बच्चों की हिफ्ज़ हो चुके हैं स्कूल की तालीम के साथ साथ। ये बहुत कामयाब कदम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम की तरफ तौफीक से ये कदम हमारा उठा है और कामयाबी की तरफ गामज़न है। 20 बच्चे अभी आए हैं। दुआ कीजिए कि हमारे बहुत सारे मुस्लिम बच्चे बातिल के माहौल में हैं, अल्लाह पाक उनको बातिल के माहौल से निकाल कर इस इस्लामी माहौल में पहुंचा दें, ताकि जो बच्चे दिन में 3 बार शिर्क कर रहे हैं वो शिर्क से भी बचे और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले बने। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, सुबह शाम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, अहादीस याद करते हैं, सुन्नतें याद करते हैं, फ़ज़ाइल आमाल पढ़ी जाती हैं, मुंतखब अहादीस पढ़ी जाती हैं और बुज़ुर्गों के वाक़यात सुनाए जाते हैं। इस तरह बच्चों की तरबियत की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 साल का 1.5 साल का अरसा हुआ जो हमारा काफ़िला भी चल रहा है, लेकिन ये हमारे पास जगह की तंगी होने की वजह से अब हम मज़ीद बच्चों को दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने किराए की इमारत में ये मदरसा शुरू किया। अब किराए की इमारत में जगह नाक़िस होने की वजह से मज़ीद बच्चों को हम ले नहीं सकते, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मदरसे की कोई मुस्तकिल इमारत हो जाए और मुस्तकिल जगह हो जाए जिसमें इंशाअल्लाह इमारत तामीर की जाए और उसमें बच्चों को तालीम दी जाए। एक बात मैं आपको यहाँ पर ये कहूँगा कि हमारे 3 टारगेट हैं काम करने के। ये तो मदरसे की इब्तिदा कैसी हुई ये मैंने आपको बताया, मदरसा किस हद तक कामयाब हुआ, 1.5 साल में हमें क्या कामयाबी मिली वो कारगुजारी मैंने आपके सामने रखी। अभी हमारे आइंदा के अज़ाइम क्या हैं, हम क्या काम करना चाहते हैं। हमको मदरसे के लिए एक बड़ी सी जगह की ज़रूरत है, वो इसलिए कि ये मुस्लिम कम्युनिटी और बिरादरी की तरफ से ये फ़र्स्ट काम है, ये पहला काम है जो नाबीना बच्चों के लिए किया जा रहा है। पूरे ऑल और महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम ब्लाइंड स्कूल नहीं है, ये फर्स्ट स्कूल है मुस्लिम ब्लाइंड स्कूल। और स्कूल के साथ साथ मदरसा ये शायद ऑल और इंडिया में पहला हो कि जहाँ पर एक ही छत के नीचे स्कूल की भी तालीम दी जा रही हो और एक ही छत के नीचे मदरसे की भी तालीम दी जा रही हो, ये शायद कि पहला हो। तो उसके लिए हमको जगह की ज़रूरत है। तो हमारे 3 टारगेट है। एक तो नाबीना जो बच्चे हैं, लड़के हैं स्कूल के पहली से लेकर 10वीं तक, उनको इस इस्लामी माहौल में इस दुनिया की भी तालीम देना है और कुरान हिफ्ज़ की भी तालीम देना है और उसके साथ साथ बुनियादी इल्म दीन की तालीम देना है लड़कों के लिए। उसी के साथ साथ जिस तरह लड़के हैं उसी के साथ साथ लड़कियां भी हैं। बेशुमार हमारी नाबीना मुस्लिम लड़कियां हैं जो कि गैरों के हॉस्टल में रह रही है और गैरों के स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। आप यकीन जानिए लड़कियों के हाल लड़कों से भी ज़्यादा ख़राब है और बहुत नाजुक है। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि हमारी नाबीना बच्चियाँ जो हॉस्टलों में रहती हैं उनका कितना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और नाजायज़ उनसे फ़ायदा उठाया जा रहा है। क्योंकि ये नाबीना बच्चियाँ होती हैं, इनको कोई सहारा देने वाला नहीं होता। जो भी इनको सहारा देता है ये उस तरफ मुड़ जाती है। फितरत की चीज़ है। मैं भी अगर मजबूर रहूँ या आप भी मजबूर रहे और जो भी मुझे सहारा दे तो जाहिर बात हम उसकी तरफ लपक जाएंगे। तो बेचारे तो नाबीना है, तो इनको इस तरह से गैर मुस्लिम लोग लड़के इनको अपने तरफ माइल करते हैं और माइल करने के बाद फिर इनसे फ़ायदा उठाकर वापस उनको हॉस्टल में लाकर छोड़ देते हैं। जिस तरह से उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है और उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद की जा रही है। तो लड़कियों का भी हमारे सिलसिले में, हमारे अज़ाइम में एक हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह लड़कियों के सिलसिले में भी हम हॉस्टल कायम करना चाहते हैं। जिस तरह लड़कों की तालीम का हमने सिलसिला शुरू किया पहली से 10वीं तक, इस तरह इंशाल्लाह हम लड़कियों के लिए भी अलहदा मुकम्मल पर्दे के साथ और जिसमें पढ़ाने वाली टीचर होंगी, जेंट्स से टीचर भी होंगे, लेडीज़ टीचर होंगी, उन्हीं के ज़रिए उनकी तालीम का इंशाल्लाह हम नज़्म करेंगे ताकि इस्लामी उसूलों के साथ और रियायत के साथ उनको दीन की तालीम दी जाए और दुनिया की तालीम दी जाए। तो लड़कियों के लिए भी इंशाल्लाह हमारे अज़ाइम में है कि उनके लिए भी मुस्तकिल हॉस्टल हो और तालीम का पूरा इंतज़ाम हो और वो भी स्कूल की तालीम के साथ साथ कुरान करीम की तालीम हासिल करें। ये 2 टारगेट। तीसरा टारगेट हमारा बड़े नाबीना बच्चों के, बड़े नाबीना लड़कों के लिए है जो कि बड़ी उम्र के हो जाते हैं, 25-25 साल के, 40-40 साल के, और जिनका कोई ज़रिए माश नहीं होता
और आखिर में मजबूरन वो भीख मांगने के लिए जाते हैं और लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं और लोगों से भीख मांगते हैं। इस तरह वो कौम पर और मिल्लत पर बोझ बनते हैं। गाने गाते हैं, फिल्म स्टोरियाँ सुनाते हैं, इस तरह से पैसे कमाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो ये बड़े बच्चे हैं ये भी दीन से नावाकिफ़ है, क्योंकि इनको भी दीन का कोई माहौल नहीं मिला। इन्होंने भी बातिल की स्कूलों में ही तालीम हासिल की, इन्होंने भी कुफ्र किया, शिर्क किया, लेकिन उनको इस्लाम की बुनियादी तालीम नहीं मिली। तो ये भी नमाज़ों से दूर है, रोज़ों से दूर है, कुरान की तिलावत से दूर है, बस भीख मांग रहे हैं और अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। तो हमारे जहन में तीसरा टारगेट ये है कि ऐसे बड़े बच्चे जो दीन से नावाकिफ़ है और भीख मांग रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को जमा करना, 4 महीने या 6 महीने का एक मुख्तसर कोर्स रखना है जिसमें उन बच्चों को मदरसे में एडमिशन देना है और उनके लिए खाना पीना रहना सब फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। और फिर 4 महीने या 6 महीने में उनको कम से कम बुनियादी नमाज, बुनियादी दीन, बुनियादी कुरान पाक की तिलावत के उसूल और आदाब और कम से कम 30वां पारा वो हिफ्ज़ कर ले और पढ़ ले, ताकि उनकी नमाज़ें दुरुस्त हो जाए और उनकी बुनियादी दीन का इल्म जो ज़रूरी है उतना उनको मिल जाए। वो 4 महीने या 6 महीने में देने का इरादा है। और साथ साथ इस दीन के साथ साथ उनको ऐसा कोई हुनर देना है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए और वो कौम और मिल्लत के लिए बोझ न बने, बल्कि वो लोगों के लिए सहारा बने, अपनी फैमिली के लिए एक सपोर्टर बने। तो इंशाअल्लाह ये हमारे अज़ाइम में है कि ऐसे बड़े लोगों को भी जमा करना है और उनको दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी आरास्ता करना है, बुनियादी दीनी तालीम भी देना है और उनको कोई हुनर देना है ताकि कम से कम वो अपने कदमों पर खड़े हो जाए। ये हमारा अज़ाइम है। पूरी तकमील तक पहुँचाने वाली ज़ात तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही है और अल्लाह पाक ही के फजल करम से इंशाअल्लाह हमें इस बात की उम्मीद है कि हम इस टारगेट तक इंशाअल्लाह ज़रूर पहुँचेंगे, क्योंकि सिर्फ 1.5 साल के अरसे में अल्लाह पाक ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी दी और बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि ये काम आगे बढ़े, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी और बिरादरी की तरफ से पहला कदम उठाया गया है। और महाराष्ट्र में अभी तक कोई इदारा ऐसा नहीं है जहाँ पर के बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही हो। लिहाजा मेरी तमाम लोगों से बड़ी दर्दमंदाना अपील है कि देखिए इस सिलसिले में हमने बड़ी गफलत की, बड़ी कोताही की इस तबके को नज़रअंदाज करके कि हमने नाबीना बच्चों को की तरफ तवज्जो न की, जिसकी वजह से बातिल ने इनको उछक लिया और बातिल उनको हर सहूलत देने के लिए तैयार है। और जाहिर बात है कि बच्चों को जहाँ सहूलतें मिलेंगी बच्चे उधर के हो जाएंगे। खुदारा अगर हमने इस तरफ तवज्जो न की तो कल क़यामत के मैदान में हम तमाम के तमाम अल्लाह के दरबार में मुजरिम करार दिए जाएंगे और हमारी पकड़ होगी और अल्लाह पाक गिरफ्त करेंगे कि हमारे नबी ने तो एक गैर मुस्लिम को ईमान में लाने के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी और रातों को रोए और दिन भर मेहनतें की और ईमान वालों तुम्हारे पास माल था, दौलत थी, सब कुछ थी और तुम्हारे होते हुए मुस्लिम बच्चे गैरों की गोद में चले गए और ईमान को उन्होंने फ़रोख्त कर दिया मामूली चंद सिक्कों की वजह से। तो कई अल्लाह के सामने हमें जवाब देना मुश्किल न पड़ जाए। अल्लाह पाक हमारी गफलत को माफ़ करे। जो अब तक हमसे गफलत हुई इस सिलसिले में हमने बहुत ताख़ीर की है और कई हमारे मुस्लिम बच्चे मुर्तद हो चुके हैं और वो ईमान से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, नई कौम आ रही है, हम उन पर तवज्जो दें ताकि वो बच्चे ईमान पर मजबूती के साथ कायम रहे। और ये नहीं कि वो नाबीना है इस वजह से हमें उनको नज़रअंदाज करना है, नहीं। अगर अल्लाह किसी से बीनाई लेता है तो दूसरी सिफत अल्लाह पाक उसमें दे देते हैं और अल्लाह पाक उसके अंदर दूसरी खूबी पैदा कर देते हैं। और अगर उस बच्चे की सही तरबियत की जाए तो वो बहुत कुछ तरक्की कर सकता है, बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है और कौम की इस्लाह का बहुत बड़ा ज़रिया बन सकता है। ज़रूरत इस बात की कि हम उसको सही तौर पर गाइड करें, सही तौर पर उसके नशोनुमा करें, सही तौर पर हम उसकी तरबियत करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारे की बुनियाद रखी गई है और मुझे बड़ी खुशी है हमारे हाजी ईसा अमान साहब दामद बरकात उनसे अल्लाह पाक इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक इन्हें सेहत दे, आफ़ियत दे, तंदुरुस्ती दे और एक मुस्तकिल अमला अल्लाह पाक इनको अता फरमाए जो ये खैर के काम कर रहे हैं, जो उसमें उनका दाम दर में सुखान ताउन करे और उनकी जो अज़ाइम है उनको तकमील तक पहुँचाने के लिए इनकी मदद करे। कि अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब से मेरा ताल्लुक़ हुआ था, आप बज़ात ख़ुद मदरसे में आए, आपने मदरसे का मुआयना किया, विज़िट की, बच्चों की तालीम देखी और आपने ख़ुद महसूस किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे ने किस हद तक कितनी कम मुद्दत के अंदर कितनी कामयाबी हासिल की। लेकिन आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि मदरसा अभी इब्तिदाई मराहिल में है, मदरसे की कोई अभी ज़मीन नहीं है, कोई इमारत नहीं है, किराए की जगह पर चल रहा है और इसका कोई अखराजात का हमारे पास इंतज़ाम नहीं है। बस अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के दिलों को मुतवज्जह फरमाए और आपके ताउन से इदारा तरक्की करे और हम तमाम की नजात का ज़रिया बन जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस मदरसे का नाम हमने जामिया अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रखा। आप ताज्जुब करेंगे कि इस नाम रखने की वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि नाबीना बच्चों का इदारा है और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम ये भी नाबीना सहाबी थे और ये वो सहाबी है जिनका ज़िक्र ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अबस में फ़रमाया, अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा।
कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का और सरदारान मक्का को लेकर बैठे हुए थे और उनसे आप दीन की नसीहत की बातें कर रहे थे। तो ये नाबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम लकड़ी टेकते टेकते अल्लाह के नबी की खिदमत में है। चूँकि नाबीना थे, इनको पता नहीं कि अल्लाह के नबी किसके साथ बैठे हुए। इन्होंने बुलंद आवाज़ में पुकारा, कहा कि अल्लाह के नबी मैं आपसे कुछ मालूमात लेना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी के दिल पर एक नागवारी गुजरी कि अब्दुल्ला तो मेरा अपना है, ये कभी भी आकर मुझसे दीन का इल्म हासिल कर सकता है, लेकिन ये मुशरिकीन मक्का, ये सरदारान मक्का जो कभी जमा नहीं होते, आज जमा हुए हैं। हो सकता है कोई खैर की बात इनके कानों तक पहुँच जाए, इस्लाम कबूल कर ले तो इस्लाम को नफ़ा पहुँच जाए। तो इनका जमा होना मेरे लिए बहुत अहम है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनको ज़्यादा वक्त दूँ। तो अल्लाह के नबी को नागवारी गुजरी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम के आने पर। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो कि अलीम बिदात सुदूर है, आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल पसंद नहीं आया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन जिब्रील अमीन को भेजा सूरह अबस की इब्तिदाई आयतें लेकर, और सूरह अबस नाजिल हुई अबस व तवल्ला अन जाअहुल अमा, कि ए नबी जी आप हमारे उस बंदे से रूगर्दानी कर रहे हैं जो कि तलब लेकर आया है, ये तालिब है, और आप जिन मुशरिकीन मक्का को लेकर बैठे हैं ये गैर तालिब है, इनमें तलब नहीं है। तो आप उन पर क्यों मेहनत कर रहे हैं जिनमें तलब नहीं है, आप उसको नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं जिसमें तलब है। तो जैसी आयत नाज़िल हुई तो अल्लाह के नबी ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम को बुलाया और फरमाया, हे अब्दुल्ला इब्न मक्तूम तुम्हारे बारे में अल्लाह ने मुझे डांटा है। उसके बाद अल्लाह के नबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम का बड़ा इकराम करते थे और अक्सर कहा करते थे कि यही वो साहबी है कि जिसकी वजह से मेरे रब ने मेरी तरबियत फरमाई, मेरी तादीब फरमाई और मुझे सिखलाया। और उसके साथ साथ जब अल्लाह के नबी किसी गज़वे में जाते थे मदीना छोड़कर, तो आप अपनी गैर हाज़िरी में अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम को अपना नाइब बनाते थे, और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम मदीना के अमीर होते थे अल्लाह के नबी की गैर हाज़िरी में, और आप नमाज़ें पढ़ाते थे हुज़ूर की गैर हाज़िरी में। जब अल्लाह के नबी काफ़िले से वापस आ जाते तो अल्लाह के नबी अपना ओहदा संभाल लेते। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम का बड़ा ऊँचा मकाम है। तो इस इदारे का नाम भी हमने उसी नाबीना सहाबी की तरफ निस्बत करते हुए रखा। और अब्दुल्ला इब्न मक्तूम के बारे में एक वाक़या ये भी आता है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी हज़रत आयशा के साथ बैठे हुए थे, तो अचानक अब्दुल्ला इब्न मक्तूम सामने से आने लगे हुज़ूर की खिदमत में। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा से फरमाया, आयशा तुम चली जाओ, पर्दा कर लो, अब्दुल्ला इब्न मक्तूम आ रहे हैं। तो हज़रत आयशा ने बरजस्ता कहा, अल्लाह के नबी वो तो नाबीना है, मुझे देख नहीं सकते, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है मैं बैठूँ या पर्दा करूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा अब्दुल्ला इब्न मक्तूम तो नाबीना है, वो तुमको नहीं देख सकते, लेकिन क्या तुम भी नाबीना हो, तुम अब्दुल्ला इब्न मक्तूम को नहीं देख सकती हो। तो ये अब्दुल्ला इब्न मक्तूम का बड़ा मकाम ऊंचा है। तो इस इदारे की निस्बत हमने हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम की तरफ की। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को भी उस नेक नामी सहाबी की तरह तरक्कियात से नवाजे और इस इदारे को भी बुलंद फरमाए और इसके फैज़ को अल्लाह दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाए। और हमारी दिली तमन्ना ये है कि हमारा हर मुस्लिम लड़का हो या लड़की हो, वो बातिल के माहौल से निकल कर इस इस्लामी माहौल में आकर दीन भी सीखे और दुनिया भी सीखे। ये हमारी दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला इसको तकमील तक पहुँचाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।